سے الگ ہے سب سے جدا، سنو ایک نئی آواز، باتیں نئی ہے نیا انداز، سنو ایک نئی آواز، دل سے ہے آپ کے ساتھ نیا السلام علیکم، میں ہوں عریب اسلم اور میں انم زرگر لے کے حاضر پیش قدم کا ایک اور شمارہ۔ آج کے شمارے میں ہم اسلامک یونیورسٹی کے قابل تعریف کام کا جائزہ لیں گے۔ اسلامک یونیورسٹی نے دارالعلوم کے بچوں کو پڑھانے کا کام شروع کیا ہے۔ منطقی سینٹر کا مقصد ہی یہ ہے اس کا اسٹیبلش کرنا کہ سوسائٹی کو کچھ ہیلپ ہو تھرو پروگرامز آف اکیڈمک انسٹیٹیوشنز۔ ساتھ ہی جانیں گے کشمیری نوجوان جوڈو چیمپئن شپ میں حصہ لینے کے لیے کس طرح اپنے آپ کو تیار کرے ہمارے کھیل کے رن سیگمنٹ میں۔ اس بار بھی امید ہے کہ کم سے کم 1-2 میڈل JNK کو آئیں گے۔ ہم آپ کو جانکاری دیں گے 2011 کے سب سے اچھے کریئر آپشنز کے بارے میں۔ فائنانشل ایڈوائزر، پبلک ریلیشنز اسپیشلسٹ، سیلز مینیجر، ٹریننگ اسپیشلسٹ۔ لیکن آج کا شمارہ ہم اللہ تعالیٰ کے 99 فضیلت والے ناموں سے کریں گے۔ آواز ہے یوسف اسلام اور حجاز کی، یہ ہے اسماء الحسنی۔ الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحسن المبدع المعین المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البار التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ تعریف کر کے اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کو سن کر ہم ثواب کے امیدوار ہیں۔ عوام کی خدمت کرنا بھی باعث ثواب ہے۔ اسلامک یونیورسٹی نے اونتی پورہ میں چل رہے دارالعلوم کے بچوں کو پڑھانے کا کام ذمہ لیا ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ جانتے ہیں کہ پیش قدم نے کچھ عرصہ پہلے اس دارالعلوم پر ایک سٹوری کی تھی، اور اس وقت وہاں کے استاد شاہبان نے اس بات پر زور دیا تھا کہ بچوں کو دینیات کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ملنی چاہیے۔ پیش قدم کے عمر خالد آج ہمیں بتائیں گے کہ اسلامک یونیورسٹی کے منطقی سینٹر فار سائنس اینڈ سوسائٹی نے بچوں کو تعلیم کے نور سے آراستہ کرنے کے لیے کیا کیا اقدام کیے۔ تو چلیے سنتے ہیں آج کی کور سٹوری عمر خالد کی زبانی۔ 26 یمن چھ آسان زٕ قسم، اکھ چھ آسان کیپٹل لیٹرز، بیٚیہِ چھِ آسان سمال لیٹرز۔ اپنے کمیونٹی فرض کو نبھاتے ہوئے اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے منطقی سینٹر نے روم ریچ آؤٹ اینڈ مینٹور پروگرام شروع کیا ہے۔
इस प्रोग्राम के तहत दारुल उलूम जमत और रशद के बच्चों को मुफ्त पढ़ाया जा रहा है। मंतकी सेंटर की कोऑर्डिनेटर शाजिया जी कहती हैं, मंतकी सेंटर का मकसद ही ये है उसका इस्टेब्लिश करना कि सोसाइटी को कुछ हेल्प हो थ्रू प्रोग्राम्स ऑफ एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। तो उसी मकसद से हमने देखा कि दारुल उलूम हमारे यूनिवर्सिटी के इतना नज़दीक है, और एक बार जब ऐसे ही वहाँ गए और पता चला कि वहाँ सिर्फ इनको कुरानी तालीम दी जाती है, फिर ये दिमाग में ख्याल आया कि हम में से ही टीचर्स, स्टूडेंट्स जिनके पास कम से कम बैचलर्स डिग्री तो हर एक के पास है ऑलमोस्ट, तो वो वॉलंटियर करे और इनको बेसिक लेवल का एजुकेशन फराहम करे। इन एडिशन टू जो दारुल उलूम खोलने का इनका मकसद रहता है कि अरबिक की तालीम ले, दीनी तालीम ले, कुरान की तालीम ले, साथ साथ इनको इस बारे में भी थोड़ा सा नॉलेज दे जो एकेडमिक नॉलेज होती है। इस दारुल उलूम के उस्ताद हाफिज ताहिर इस प्रोग्राम के शुरू होने पर काफी मसरत का इजहार कर रहे हैं। इस्लामी यूनिवर्सिटी वालों ने हमारे ऊपर बहुत एहसान किया है कि उन्होंने वहाँ से उस्ताद 2-3 भेजे हैं और पढ़ाते हैं लड़कों को, उनसे बहुत फायदा मिलता है हमको। जब से वो आए हैं और तब से हमको लगता है कि बहुत फर्क हुई लड़कों को उर्दू में, इंग्लिश में। ताहम हाफिज साहब दारुल उलूम के और मसाइल का हल करने के लिए लोगों और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मजीद मदद चाहते हैं। यहाँ जरूरत है बिजली की और पानी की बहुत जरूरत है, और यहाँ ये रोड है वो उसमें कीचड़ उठता है, उसकी भी जरूरत है। अब ये दो तीन प्रॉब्लम हम कहते हैं लोगों से या इस्लामी यूनिवर्सिटी से, ये भी पूरी करेंगे इंशाअल्लाह। इस दारुल उलूम में जेर तालीम गुलजार अहमद रोम प्रोग्राम के शुरू होने पर खुशी का इजहार कर रहे हैं और कहते हैं इस प्रोग्राम से उनकी तालीमी जरूरियात पूरी हुई है। इंग्लिश तगन पढ़ अगर वही कुन इंशाल्लाह कुन बोर्ड अगर कुन लिखित हेको आराम से सह पढ़। अगर बाज़ाब्त कह चीज अनान तथ गो इंग्लिश का वर्ड लिखित, तथ उर्दू क्या अम हिसाब लोग इंग्लिश पढ़। यह पसंद यह तालीम यसान हर कह तालीम पढ़, मगर खतर बेहतरी जरूरी भी लाजमी। रोम जैसे प्रोग्रामों की कामयाबी के लिए मंतकी सेंटर की कोऑर्डिनेटर शाजिया जी ने लोगों का ताउन मांगा है। हमें बहुत कोऑपरेशन मिला है दारुल उलूम के मुफ्ती साहब से, शायद वो एक सबसे बड़ा हमारे लिए सपोर्ट है, क्योंकि अगर हम कितना भी सोचते और वहाँ से सपोर्ट नहीं मिलता, हम इस मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकते थे। इसी तरह से अगर बात की जो अगर इस तरह का कोई नेक काम है, अगर उसको आगे बढ़ाते हैं, तो साथ साथ अगर उन बच्चों को स्कूल नहीं जा पाता है किसी भी वजह से, चाहे फैमिली बैकग्राउंड ऐसा ना हो या कुछ फैसिलिटीज उसके पास अवेलेबल नहीं है, और वो ऐसे हमारे इर्द गिर्द में या नेबरिंग में भी कभी अपनी कम्युनिटी में होता है, या जैसे हमारा यहाँ मैक्सिमम टाइम गुजरता है दारुल उलूम में, ऐसे बच्चे हैं, तो उनको एक स्कूल लेवल का एजुकेशन तो कम से कम मिलना ही चाहिए। उम्मीद करते हैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये खुशाइन कदम दारुल उलूम के बच्चों के मुस्तकबिल का जामिन बने। इस्लामिक यूनिवर्सिटी के इस इक़दाम के बारे में आप क्या ख्याल रखते हैं? हमें जरूर मेल कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है peshkadam peshkadam@gmail.com। आज हम जानेंगे कुछ कश्मीरी नौजवानों के बारे में जो आजकल जूडो मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए तैयारियों में मशगूल है। सुनते हैं आज का हमारा खेल के रंग पेश कदम के इशाक भट्ट के संग। मौसमी सरमा के शुरू होते ही वादी में खेलों की सरगर्मियां कम होने लगती है। ताहम वादी के इंडोर स्टेडियम में जम्मू कश्मीर जूडो टीम की सिलेक्शन जारी है। ये सिलेक्शन जो होगी अभी जम्मू जाके, जम्मू में इनकी फाइनल सिलेक्शन होगी एज ए नेशनल के लिए। सीनियर नेशनल जो है कलकत्ता में हो रहा है जनवरी में। तो अभी हम सिलेक्शन के लेके बोथ बॉयज एंड गर्ल्स 20 एबो ग्रुप जो एज ग्रुप होता है इनका। अभी कैंप जो है हमारा 10 दिन का एज ए स्पेशली कैंप इसके लिए हम लगा रहे हैं यहाँ एज ए नेशनल। जो अभी बच्चे सिलेक्ट हो उसमें जो हो जाएंगे तो उनके लिए स्पेशली 10 दिन का कोचिंग कैंप होगा हमारे यहाँ। इस सिलेक्शन कैंप में लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी अपना हुनर आजमा रही है। टीम के कोच शफकत शफी को इन खिलाड़ियों से कई ज्यादा उम्मीदें हैं। जो टफ गेम्स होते हैं उनमें मेडल लाना आसान नहीं होता है, लेकिन इनके इतने सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद जो कश्मीर में हो रही है, इसके बावजूद हमारे आज तक हमने मेडल लिए हुए हैं और उन मेडल पे उन बेसिस पे हमारे जॉब्स भी लगे हैं बच्चों के। इस बार भी उम्मीद है कि कम से कम 1-2 मेडल JNK को आएंगे। इसाक भट्ट पेश कदम। My dear friend, प्रिय सहेली, सप्रेम नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। I hope this letter finds you the best of it. हम भी यहाँ बहुत अच्छे हैं। प्यारे दोस्त, हम लोग शांति और अमन के साथ
क्यों नहीं रह सकते? क्या तुम मुझसे दोस्ती करना चाहोगे? मैं तुम्हें देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, फिर भी दोस्त के नाते से मैं तुम्हें खत लिख रहा हूँ। हम आपके देश को बेहतर जानना चाहते हैं। I like to dance and sing. I love cricket. Tennis, football, hockey. आलू का पराठा. I love wearing jeans. Do you? मुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना है। और तुम्हें क्या बनना है? पता है, मेरे नाना भी लाहौर में पैदा हुए थे। मुझे भी एक दिन पाकिस्तान देखना है। Across India, school children are writing letters like these to their Pakistani friends. Imagine what will happen when this generation grows up. I love you. खुदा हाफिज। प्लीज जल्दी लिखना। आप पेशकदम को सुन रहे हैं FM 102.6 मेगाहर्ट्ज पे। आजकल मनपसंद काम हासिल करना मुश्किल नहीं है, खासकर तब जब जॉब इंडस्ट्री में आहिस्ता आहिस्ता खुशगवार तब्दीलियां रोनमा हो रही है। मगर ये जॉब्स कहाँ पर है? कौन सी नौकरी आपको अच्छी खासी तनख्वाह के साथ साथ जिंदगी को बेहतर अंदाज से गुजारने में मदद करेगी? कौन सा जॉब अगले 10 सालों के लिए फायदेमंद है? इन सभी सवालों का जवाब आज के हमारे करियर काउंसलिंग सेगमेंट में है। तो सुनते हैं आज का करियर काउंसलिंग सेगमेंट दीबा मुमताज के साथ। आजकल डॉक्टरी और इंजीनियरिंग के अलावा बहुत सारे ऐसे पेशे हैं जिनमें आप अपना मुस्तकबिल संवार सकते हैं। ये पेशे आप मुख्तलिफ बातों पर चुन सकते हैं, जैसे तनख्वाह, ज़ाती तसल्ली और शौक। ऐसे काम आपको बहुत सारे इंडस्ट्रीज में मिल सकते हैं और आप कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रखकर अपने लिए सही फैसला कर सकते हैं। तो आज हम आपको 2011 के सबसे अच्छे पेशों के बारे में कुछ बताएंगे। बिजनेस के मैदान में जो काम आप हासिल कर सकते हैं वो है अकाउंटेंट, एक्चुअरी, फाइनेंशियल एडवाइजर, पब्लिक रिलेशंस स्पेशलिस्ट, सेल्स मैनेजर, ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट। इनमें से हम आज आपको एक्चुअरी की जानकारी देंगे। एक्चुअरी इंडस्ट्रीज और कंपनीज में काम करते हैं और उनका काम होता है कि वो कंपनीज में मौत, बीमारी या जदीद नुकसानात को अच्छे तरीके से संभालें ताकि कंपनी को बहुत फ़ायदा हो। एक्चुअरीज गवर्नमेंट के साथ साथ निजी इदारों में भी काम करते हैं। क्रिएटिव और सर्विस जॉब्स में आपको ये काम हासिल हो सकते हैं। कमर्शियल पायलट, फिल्म एंड वीडियो एडिटर, इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर, मल्टीमीडिया आर्टिस्ट, टेक्निकल राइटर। इन फहरिस्त में हम आपको मल्टीमीडिया आर्टिस्ट की जानकारी देंगे। मल्टीमीडिया आर्टिस्ट हमें दुनिया की उन चीज़ों के बारे में जानकारी देते हैं जो हमने कभी सोचा भी ना हो, जैसे गैलेक्सीज जो हमसे बहुत दूर है, या हमें दुनिया के नज़ारे भी दिखा सकते हैं। ये लोग फिल्मों, वीडियो गेम्स, इश्तिहारात, वेब डेवलपमेंट, एनिमेशंस में कंप्यूटर का काम लेते हैं और कंप्यूटर से ही ये सब बनाते हैं। तिब्बी मैदान यानी मेडिकल फील्ड में आपको ये काम हासिल हो सकते हैं। एथलेटिक ट्रेनर, डेंटल हाइजीनिस्ट, लैब टेक्नीशियन। सोशल सर्विस में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये 2011 का सबसे अच्छा सेक्टर रहा है। एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर, फायर फाइटर, मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ सोशल वर्कर, अर्बन प्लानर, स्पेशल एजुकेशन टीचर। आज हम स्पेशल एजुकेशन टीचर के बारे में कुछ कहेंगे। ये खास उस्ताद उन बच्चों को पढ़ाते हैं जो जिस्मानी तौर पर माजूर होते हैं। आप एक खास लही अलम यानी साइन लैंग्वेज बनाकर उन बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इन बच्चों में बहुत सारे सुन नहीं सकते या तो फिर वो दिमागी तौर पर कमज़ोर होते हैं। इस काम से बाकी आम उस्ताद भी सीख सकते हैं कि किस तरह कमज़ोर बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। टेक्नोलॉजी जॉब्स, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग,
civil engineering, computer software engineering, computer support specialist, computer system analyst, environment science and environmental engineering technician, network architect को सिस्टम एंड डेटा कम्युनिकेशन एनालिस्ट भी कहा जाता है। इसका काम होता है कम्युनिकेशन सिस्टम को डिज़ाइन करना, यानी वाइड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क और इंट्रानेट की देखभाल। ये काम करने से आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में महारत हासिल होगी। तो ये थे 2011 के सबसे अच्छे करियर ऑप्शंस। उम्मीद करते हैं कि आप इन पर गौर फरमाएंगे। आजकल ऐसा कोई काम नहीं जो आप कर नहीं सकते। अगर ज़रूरत है तो इस बात की कि आप जो भी कर रहे हैं दिलचस्पी के साथ करें, वरना आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। करियर से मुत्तलिक ही हमें कुछ ईमेल मौसूल हुए। बिलाल अहमद ने हमें लिखा है कि मैं 24 साल का हूं और मैं काम की तलाश में हूं। शुक्रिया बिलाल मेल करने के लिए। हम आपको काम से मुत्तलिक सलाह मशवरा दे सकते हैं अगर आप हमें इन चीजों से आगाह कर लें, जैसे कि आपने कहां तक तालीम हासिल की है और किस शोबे में हैं, आप किस तरह का जॉब हासिल करना चाहते हैं। हमें जरूर लिख भेजिएगा। पेशकदम PESHKADAM@gmail.com पे। एक और मेल हमें बारामुल्ला के जुनैद की तरफ से मौसूल हुआ है। जुनैद ने लिखा है कि मैं एक तालिबे इल्म हूँ, इस वक्त मैं कॉलेज में सेकेंड ईयर में हूँ। मैं अपनी तालीम साइंस के शोबे में हासिल कर रहा हूँ और इस वक्त मैं काम की तलाश में हूँ क्योंकि मैं माली मसाइल से दो चार हूँ, मेरी मदद कीजिए। शुक्रिया जुनैद। पहले तो हम आपको ये राय देंगे कि अपनी डिग्री मुकम्मल कीजिए, क्योंकि तालीम के मयार पर ही आपको एक अच्छी नौकरी मिल सकती है। मगर आप माली तौर पे परेशान हैं तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आप पार्ट टाइम जॉब कीजिए। थोड़ी देर के लिए कॉलेज जाइए और थोड़ी देर के लिए काम कीजिए। काम के मुतालिक और कुछ जानकारी चाहिए तो हमें जरूर मेल कीजिए peshkadam@gmail.com पे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे हेल्थ सेगमेंट की ओर। फर्स्ट एड की बुनियादी चीजें जानना तकरीबन हर एक के लिए जरूरी है। आज हम डॉक्टर जाहिदा से जानेंगे कि हमें क्या और क्या नहीं करना चाहिए अगर हमें किसी को फर्स्ट एड देने की जरूरत पड़ी। अस्सलाम वालेकुम सामीन। आज मैं इस प्रोग्राम के ज़रिए अपने सुनने वालों को डूज़ एंड डोंट्स इन फर्स्ट एड के बारे में कुछ बोलना चाहूँगी। डूज़ की हमें क्या करना चाहिए उससे पहले मैं हिपोक्रेट को कोट करना चाहूँगी कि फर्स्ट डू नो हार्म। अगर हम रास्ते में चल रहे हों और हमें लगे कि कोई विक्टिम है, उसको मेजर इंजरी है, तो हमें उसको इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज लेना चाहिए या इमरजेंसी कॉल करनी चाहिए। उसके बाद हमें अगर लगे कि विक्टिम थोड़ा ठीक है तो उसके स्टेटस हमें रेगुलरली चेक करना है। उसके बाद जो ये विक्टिम है हमें देखना है कि जहाँ से ये सांस ले रहा है एयरवे जो है वो क्लियर है और उसका हमें जो हेड है थोड़ा सा टिल्ट करना चाहिए बैक की तरफ। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है कि हमें उसकी ब्रीदिंग और सर्कुलेशन चेक करनी है। अगर उसकी ब्रीदिंग और सर्कुलेशन में कुछ प्रॉब्लम है तो हमें इमीडिएटली CPR स्टार्ट करना है। अगर विक्टिम शॉक में है तो हमें उसको गर्म रखने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। लाइक इसको हमें ब्लैंकेट में या किसी गर्म कपड़े में लपेटना चाहिए। और जब भी हमें लगे कि इस पेशेंट को, इस विक्टिम को ब्लंट फोर्स है तो हमें हमेशा अज्यूम करना चाहिए कि इसको स्पाइनल इंजरी है। अगर अब इस विक्टिम को अपर पार्ट ऑफ बॉडी, ऊपर वाले हिस्से से खून आ रहा है तो हमें उसका जो हेड है वो रेज करना है। अगर उसके लोअर पार्ट ऑफ बॉडी में खून बह रहा है तो हमें उसके जो पाँव हैं वो रेज करने हैं। अगर बर्न इंजरी होगी या केमिकल इंजरी होगी तो हमें हमेशा उसको रनिंग वाटर में फ्लश करना चाहिए 10-15 मिनट तक। तो उसके बाद अगर हमें लगे कि पेशेंट को मामूली सी चोट है उसको तो हमें उसको घर ले जाना चाहिए। लेकिन अगर हमें लगे कि उसको सीवियर इंजरी है, उसको डॉक्टर की सलाह चाहिए, उसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, तो हमें उसको हर एक मुमकिन, हर एक जो हमसे हो सके वो मदद देनी चाहिए कि हम उसको जल्द अज जल्द अस्पताल पहुंचाएं।
फर्स्ट एड में जैसे डूज इम्पोर्टेंट है वैसे ही डोंट्स कि हमें क्या नहीं करना चाहिए वो इम्पोर्टेंट है. पहले ही जब हम विक्टिमों को देखें उसको हम ज़्यादा हिलाना नहीं चाहिए, उसको ज़्यादा मूव नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें हमेशा ये एज्यूम रखना चाहिए कि पेशेंट को स्पाइनल इंजरी है. टू प्रिवेंट फर्दर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ स्पाइनल इंजरी हमें उसको इमोबिलाइज करना है, और टू प्रिवेंट फर्दर फ्रैक्चर कंप्लीट करने या और कोई फ्रैक्चर नया देने से बेहतर है कि हमें उसको इमोबिलाइज करना चाहिए. दूसरा ये कि अगर पेशेंट ब्लीड कर रहा है तो हमें उसको टॉर्निक्यो या कोई जैसे कि आम देखा गया है कि कपड़े से जहाँ से खून बह रहा है उसके ऊपर वाले हिस्से से हम कपड़ा बांध रहे हैं, वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. हमें सिंपली क्या करना चाहिए कि जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है वहाँ से प्रेशर रखना चाहिए ताकि ब्लीडिंग कम हो. दूसरा ये कि अगर बर्न इंजरी हो जाए तो इम्पॉर्टेंट है कि हमें उसमें अवॉइड करना है कि आइस ना लगाएं, बटर या पेस्ट ना लगाएं, बल्कि सिंपली जो नलके का पानी बहते हुए पानी से उसको 10-15 मिनट तक वॉश करें. उसके ऊपर उसको लूज बैंडेज लगाएं या एक कॉटन का खुला, अगर बैंडेज अवेलेबल ना हो तो एक साफ जो कॉटन का कपड़ा है वो उस बर्न एरिया पे लगाएं और उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाएं. आज के हमारे संगमील सेगमेंट में हम उस वाक़े के बारे में बात करेंगे जिसको पेश आए अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ, यानी उस ज़लज़ले को जो कि हिंद महासागर में तकरीबन 7 साल पहले रोनुमा हुआ, जिसकी वजह से सुनामी जलवगर हुई. पेश कदम के उवैस गरकू आज हमें इस कयामत खास वाक़े की जानकारी देंगे आज के संगमील में. 26 दिसंबर 2004 को सुनामी ने बहरी हिंद के साहिल को तबाह कर दिया. इसी दिन एक ज़बरदस्त भूचाल जो इंडोनेशिया के साहिल इलाके सुमत्रा में आया, इसी से सुनामी वाक़ा हुई, जिसके नतीजे में बहरी हिंद के वसी साहिली इलाके में मौत और तबाही वकूअ पज़ीर हुई. ये भूचाल अपनी नौइयत का दूसरा शदीद भूचाल रिकॉर्ड किया गया. सुबह के 7:58 हो गए थे जब एक ज़बरदस्त भूचाल बहरी हिंद के मगरबी साहिल 160 मील नीचे सुमत्रा में वाक़ हुआ. रिक्टर पैमाने पर इसकी शिद्दत तकरीबन 9.3 थी. इसके कबल शायद कुछ शदीद झटके भी आए थे और ये तकरीबन 10 मिनट तक जारी रहा. जमीन की इस शदीद हरकत से हजारों टन भारी भरकम पत्थर कई मील सतह समंदर में बिखर गए, जिसकी वजह से पानी की उछाल काफ़ी लंबी और इतनी ताकतवर थी कि दूसरी जंग अजीम में जितने भी बम इस्तेमाल हो गए उससे दुगना ताकतवर सुनामी थी. इस सुनामी के नतीजे में सिर्फ 15 मिनट में साहिली सुमत्रा क्रैश हो गया. इसका गुंजान आबादी वाला शुमाली जजीरा जो आजे कहलाता है, मिनटों में 80 फुट से लेकर 100 फुट ऊंचे लहरों से बह गया और सिर्फ इंडोनेशिया की हलाकत 1,60,000 के करीब थी और 50,000 के करीब लोग बेघर हो गए. मजलूमों में कसीर तादाद बच्चों की थी. इसका असर थाईलैंड तक भी पहुंच गया जहां तकरीबन 8,000 लोग मारे गए. बहरी हिंद में मशरक की तरफ श्रीलंका भी असरअंदाज हुआ, जिसके नतीजे में तकरीबन 35,000 लोग मारे गए और 5 लाख लोग बेघर. हिंदुस्तान में भी 15,000 लोग इस सुनामी की वजह से हलाक हो गए. कुल मिला के तस्दीक शुदा 1,90,000 लोग मारे गए. 45,000 लोग लापता हो गए जिनका हलाक होने का शुबा है. अगरचे $7 बिलियन का इमदादी सामान असरज़दा इलाकों में डाला गया, फिर भी कई इलाके अब भी इस तबाही के दलदल में हैं. दिल रुक जाए और सांस बंद हो जाए तो हर लम्हे की अहमियत बढ़ जाती है. CPR एक इमरजेंसी कार्रवाई है जो जिंदगी बचाने में मदद कर सकती है. 70% से ज्यादा कार्डियक अरेस्ट घरों या पब्लिक जगहों पर होते हैं, इसलिए जिसकी आप मदद करेंगे वो आपका कोई अजीज या फैमिली मेंबर हो सकता है. पूरी फैमिली को CPR सीखना चाहिए. यह पैगाम हार्ट एंड स्ट्रोक फाउंडेशन ने पहुंचाया. सेहतमंद दिलों का आगाज घर से होता है. आप पेश कदम को सुन रहे हैं FM 102.6 मेगाहर्ट्ज पर. आज के हमारे किसान संचार सेवा में हम आपको एक ऐसी जानकारी देंगे जो हमारे किसान भाइयों को गर्मी और सर्दी दोनों से बचा सकती है. मजीद मालूमात जानते हैं पेश कदम के नजमा फारूक से.
ہم بات کریں گے شبیر احمد کی تیار کردہ ایسی جیکٹ کے بارے میں جو باڈی کولر اور وارمر دونوں کا کام دیتی ہے۔ اس جیکٹ میں پلاسٹک پائپس کا ایک جال بچھا ہوا ہے جن میں کچھ کا رخ مغرب یا مشرق اور کچھ کا رخ جنوب یا شمال کی طرف ہوتا ہے، اور یہ پائپس آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ موسم کے حساب سے ان میں گرم یا سرد پانی بھرا جاتا ہے جو کہ ان پائپس میں گردش کرتا ہے اور اس طریقے سے سردی میں گرمی اور گرمی میں ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ اس سیگمنٹ کو تیار کرنے میں ہمیں تعاون حاصل ہے kisansanchar.com کا۔ آپ ان کی ویب سائٹ پہ بھی اہم معلومات حاصل کر سکتے ہیں، یا آپ ہمیں بھی میل کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی جانکاری ضرورت ہو۔ آج ہم کولڈ سورس کے بارے میں جانیں گے، یعنی ان چھالوں کے بارے میں جو کافی درد بھرے ہوتے ہیں۔ یہ چھالے یا تو ہونٹوں پہ، منہ پہ یا ناک کے آس پاس نکل آتے، یہ وائرس کی وجہ سے ہوتے۔ نیہا آج ہمیں ان چھالوں سے بچنے کے طریقے بتائے گی آج کے نیہا کے نسخوں میں۔ السلام علیکم، میں ہوں نیہا جین اور آپ سن رہے ہیں نیہا کے نسخے۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کولڈ سورز یعنی جلد کی خشک ہونے پر اس میں چھالے آنے کے بارے میں، جسے ہم زال بھی کہتے ہیں۔ زال سے نجات پانے کے لیے چند نسخے کچھ اس طرح سے ہیں۔ زال سے متاثر جگہ پر ہر 1 گھنٹے بعد برف لگائیں، یا پھر استعمال کیے ہوئے ٹی بیگز چند منٹ کے لیے متاثر جگہ پر رکھیں اور اسے ہر 1 گھنٹے کے بعد دہرائیں۔ ہلکے ہاتھوں سے زال پہ ایلو ویرا جیل یا آئل لگائیں، یا پھر گیلی انگلی میں نمک لگا کر زال کو 30 سیکنڈ کے لیے دبائیں، یا پھر آپ روئی کو ٹھنڈے دودھ میں ڈبو کر زال پر لگا سکتے ہیں۔ کچی پیاز کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی متاثر جگہ پر لگانے سے زال سے راحت ملتی ہے۔ منہ یا زبان پہ ہوئے چھالوں سے نجات پانے کے لیے 2 بڑے چمچ تازہ آڑو کے جوس سے کلا کریں۔ اس کے علاوہ چند باتوں کا خاص خیال رکھیے۔ زال کو چھپانے کے لیے کسی بھی کاسمیٹک پروڈکٹ کا استعمال نہ کریں، کیونکہ ان میں موجود کیمیکلز متاثر جگہ کو اور بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ زال ہونے پر تیزابی اور نمکین کھانے کی چیزوں سے پرہیز کریں۔ اس کے علاوہ چاکلیٹس، مونگ پھلی، مٹر اور دلیا نہ کھائیں، کیونکہ ان میں آرجنین کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ چائے اور کافی سے بھی پرہیز کریں۔ کھانے میں وائٹامنس، خاص طور پہ وائٹامن اے، سی اور ای کو ضرور شامل کریں۔ لہسن کو بھی اپنی خوراک میں شامل کریں۔ زیادہ تعداد میں پھل اور سبز پتے دار سبزیاں کھائیں۔ میٹ، دودھ سے بنی ہوئی چیزیں، بادام، اخروٹ اور مکئی کھانے سے پرہیز کریں۔ تو یہ تو تھے آج کے نسخے۔ ملتے ہیں اگلے ہفتے کچھ نئے نسخوں کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔ ہمارے پروگرام کا وقت قریباً ختم ہو چکا ہے، مگر اجازت لینے سے پہلے آج کا کت پنڈ، جس میں ہم نے آپ سے پوچھا ہے کہ دوسروں کی کون سی چیز آپ کو تنگ کرتی ہے۔ جو لوگوں میں بیڈ ہیبٹ ہوتے ہیں، وہ سگریٹ پیتے تو دکھا رہے ہیں کہ میں فار ایگزامپل کوئی ہائی پروفائل کا بندہ ہوں تو مجھے وہ ہیبٹ ان میں سے اچھی نہیں لگتی ہے۔ کوئی آتا ہے اور کسی بندے کو مارتا ہے، وہ عادت مجھے اچھی نہیں لگتی ہے۔ مجھے بہت برا لگتا ہے جب لوگ یہاں پہ ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ مجھے بہت برا لگتا ہے ان لوگوں کا۔ مجھے لوگوں کی سب سے بری عادت اسموکنگ لگتی ہے، کیونکہ جب بھی میرے سامنے کوئی اسموکنگ کرتا ہے تو اس کے منہ سے وہ دھواں جب میری ناک میں گزرتا ہے تو مجھے بہت کھانسی آتی ہے، تو یہ عادت مجھے سب سے بری لگتی ہے۔ جو میرے کو عادت بری لگتی ہے وہ ہے بیک بائٹنگ۔ ایک انسان کو اسٹریٹ فارورڈ ہونا چاہیے، جو بھی اس کے اوپینین سے کسی بندے کے لیے وہ اس کو سامنے بولنا چاہیے، بیک بائٹنگ نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے گندا لگتا ہے کہ جب کوئی لڑکا جھوٹ بولتا ہے، مجھے یہ گندا لگتا ہے جب لڑکے اسموکنگ کرتے ہیں گروپس میں۔ مجھے لوگوں کا ایٹیچیوڈ اچھا نہیں لگتا ہے، اور کوئی اسپٹ کرتا ہے روڈ پہ تو وہ بھی اچھا نہیں لگتا ہے۔ ایک پہلی بات مجھے وہ بری لگتی ہے جو سامنے کچھ اور ہوتے ہیں اور اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں۔ جو ہیبٹ مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی ہے لوگوں میں، دیٹ از smoking in public, especially in buses and other public places. The thing I don't like is the backbiting, that that's usually, I guess girls do that most, and I don't like that thing. تو یہ تھا آج کا پیش قدم۔ ہم ہمیشہ کافی لگن کے ساتھ یہ پروگرام آپ تک پہنچاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک صحیح معلومات پہنچتے رہے۔ آج بھی ہم آپ سے اپنے پروگرام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ہمیں ضرور لکھ بھیجیے۔ ہمارا پتہ ہے پیش قدم، ڈپارٹمنٹ آف جرنلزم، اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اونتی پورہ۔ یا آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل آئی ڈی ہے پیش قدم peshkadam@gmail.com پر۔ آپ ہمیں فیس بک پیج یا فیس بک گروپ پر بھی آگاہ کر سکتے ہیں۔
तो इसी के साथ दीजिए अनम जरगर, अरीब असलम और पेशकदम की पूरी टीम को इजाजत। खुदा हाफिज। आपके साथ नया आप पेशकदम को सुन सकते हैं FM 102.6 मेगाहर्ट्ज पे इतवार को सुबह 9:15 पर, और इसी प्रोग्राम को आप दोबारा सुन सकते हैं बुधवार को शाम 6:30 पर।